اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور انہوں نے کہا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے، یہ ان کی خیالی باتیں ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو کہیں اگر تم سچی ہو تو دلیل پیش کرو۔ عزیز محترم، میں ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 111 پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور اس کا ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ہر حرف ہر لفظ کا معنی عرض کروں گا، پھر تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرا یہ سوچ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلام پھیلے۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، خلق اللہ نہیں ہے، یعنی مخلوق نہیں ہے۔ یہ قرآن جو کہے گا قرآن مخلوق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی ناجائز ہے۔ اس کو بہار شریعت نے شرائط امامت میں لکھا ہے۔ میرے دوستو، میں یہ مشن بنایا ہوا ہے کہ ہر انسان کے کان تک اللہ کا قرآن پہنچے، اسلام پہنچے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچے۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگو تم ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرو۔ یہ نیک کام ہے، میری مدد کرنی ہے۔ میرے 3 چینل ہیں، ایک چینل ہے کرمانی ٹی وی، یوٹیوب پر ہے، جس سے میں آپ کی خدمت میں قرآن عرض کر رہا ہوں، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 1، اس میں بھی اسلامی باتیں، اسلامی مسائل، اور تیسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نے تمام فقہاء کرام کے اقوال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام مسائل میں نے دیے ہیں اور دے رہا ہوں۔ اور آپ نے جو ہے میرے دوستو میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، تاکہ میرا جو یہ سوچ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کی یہ مدد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے منظور و مقبول فرمائے، اور تاکہ ہر انسان کے کان میں پہنچ جائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے قرآن مجید سنا نہیں تھا، ہم کو تبلیغ نہیں پہنچی تھی۔ تبلیغ کرنا ہمارا فرض عین ہے، اور ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، تو ہم نے بھی مدد کرنی ہے۔ لیعبدون، اللہ نے فرمایا انسان اور جنوں کو میں نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر میری مدد یہ کرنی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک، کمنٹ، فالو، شیئر کریں، لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں، قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کی تفسیر پہلے ترجمہ اور اس کی تلاوت عرض کی، اب میں اس کا ہر حرف ہر لفظ کا معنی اور پھر اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَالُوا، وا کا معنی ہے ایک جملے کو دوسرے جملے تک ملانے کا، اور یہ عاطفہ یعنی عطف ہے، اور اس کے بعد اور اس کا معنی ہے قالو، وقالو، قالو جو ہے یہ قالا واحد ہے، قالا تثنیہ ہے، قالو جمع ہے۔ قالو فرمانے کا یہ مقصد ہے اللہ کا کہ یہ تمام لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے۔ اور لن يدخل الجنت، لن جو ہے عربی میں اس کا معنی نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا، اور لن ہرگز نہیں، یدخلا داخل ہوگا۔ یدخلا جو ہے یا مضارع کی غائب کی ہے، یا کو اگر آپ حذف کر دیں، گرا دیں گے تو یہ یدخلا کا داخلہ بن جائے گا۔ یہ لفظ داخلن سے بنا ہے، یعنی کسی کے اندر چلے جانا، داخل ہو جانا، اردو میں
इस्तेमाल होता है। तो अरबी में आतैन होता है, अलिफ ता या और नून। आतैन अलिफ लगा देंगे, ता लगा देंगे, या लगा देंगे, नून लगा देंगे तो मुजारे का सीगा बन जाएगा। मुजारे का मकसद है हाल का माना देना और इस्तकबाल मुस्तकबिल का माना देना। तो यहाँ पर जो है यदखुला ये मुजारे का सीगा है। अगर लाम लगाने से फिर हाजिर का सीगा बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था यदखुलो दाखिल होगा, यानी कि मैंने अर्ज किया कि या यदखुलो जो या है मुजारा है, ये माजी का अपना हाल का भी माना देता है और इस्तकबाल का भी माना देता है। यहाँ पर जो है मुजारा का सीगा यदखुला ये मेरे दोस्तों ये माना दे रहा है इस्तकबाल का, मुस्तकबिल का, आने वाले वक्त का। आगे है जन्नता व यदखुलल जन्नता। जन्नत जन्नत में जन्नत कहते हैं, बहिश्त कहते हैं, बाग को हम उसको बाग कहते हैं, जन्नत को उर्दू में बाग कहते हैं। और फिर फारसी में इसका जो मतलब होगा तर्जमा करेंगे जन्नत का तो उसका तर्जमा रियाज होगा, यानी जन्नत को फारसी वाले रियाज कहते हैं। इल्ला मगर ये इस्तिस्ना है। मन माना जो होता है, मन औरतों के लिए भी होता है यानी मुअन्नस भी होता है और मन मुज़क्कर भी होता है। इससे मुराद औरतें भी हैं, इससे मुराद मर्द भी, दोनों यानी जो कोई, मन का माना जो कोई, औरत हो या मर्द हो, जो कोई भी हो। काना का मतलब अजल मोहतरम ये होगा कि इसका माना होगा बनेगा। काना एक वाहिद, काना तस्निया दो, कानू ये जमा का सीगा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमा का सीगा जो है नहीं फरमाया, काना वाहिद फरमाया है। और आ गया है हूदन। हूद का मतलब यहूदी जो तौरात पर अमल करते हैं और तौरात पर सही अमल भी नहीं करते, उनको रद्द बदल कर दिया गया है। और यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती। उस वक़्त यहूदी जो थे, जो पूरे यहूदी थे, तौरात पर और मूसा कलीम पर अमल करते थे, उसको नबी मानते थे और उस अहकाम पर अमल करते थे, अतात फरमाबरदारी का, वो ठीक थे। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल फरमा गए तो फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गया, उसकी हुकूमत भी ख़त्म, उसकी नबूवत भी ख़त्म, उसकी शरीयत भी ख़त्म और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर उसके बाद ईसाई शुरू हो गए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नबूवत के साथ आए तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत जो है वो ख़त्म हो गई। अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी नहीं कर सकते, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी पैरवी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबी, क़यामत है इसकी नबूवत, इसकी शरीयत, अतात फरमा बरदारी और कालिमा जारी रहेगा। आगे है नसारा। नसारा का लफ्ज़ ईसाई है, नसारा है, यानी ईसाई वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर थे, कलमे पढ़ते थे हज़रत ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। यहूदी पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। तो हम पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो अज़ीज़ मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने पहले यहूदियों का जिक्र किया हूदन, क्योंकि पहले मूसा कलीम था, फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गया, इसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसकी इंजील किताब आई। तो अल्लाह ने फिर इसीलिए ईसा का नाम यानी नसारा का जिक्र जो है बाद में फरमाया। पहले यहूदियों का फरमाया कि मूसा कलीम पहले था और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है तो ईसाई हो गए। ईसाई बाद में आए तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसकी उम्मती ईसाई नसारा बाद में आए। तो इसलिए तरतीब बार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ताकि पता चल जाए कि पहले यहूदी थे, मूसा कलीम था और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यह आपको पता चल गया और आप जानते भी हैं, ये तो कोई मुश्किल तकरीर नहीं है मेरी। आगे है तिल का। तिल का माने ये, तिल का रसूलो, तिल का इसमें इशारा है। आगे है अमानियुहुम। अमानियुहुम का मतलब है कि उनकी उम्मीद। अम्मा अलहदा है, नियो अलहदा है और हम जो है ये हा हुमा हम, हा वाहिदा है, हुमा तस्निया है, हम जमा है। लफ्ज़ है नीयत से जो है बना है, नीयत से उनकी उम्मीद। कुल का मैंने कह है यानी अमर का सीगा है। हातू हाता, हाताने, हातू ये गर्दाने हैं।
हाथू का मतलब है तुम लाओ, बुरहानकुम, बुरहान का मतलब तुम दलील, यानी बुरहान कहते हैं किसी दलील को, कुम जो है तुम लाओ, का कुमा कुम, क्योंकि कालू का सीगा अल्लाह तबारक व कालू नहीं है तो कालू का सीगा अल्लाह तबारक व तआला ने जमा का सीगा फरमाया, यहाँ पर भी जमा है कुम, यानी ईसाइयों यानी यहूदियों और ईसाइयों को फरमाया जा रहा है कि तुम कोई दलील ले आओ, तुम कोई दलील ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। लफ्ज़ बुरहान है, बुरहान का माना दलील है, कुम का माना जो है का कुमा कुम जमा है, तुम दलील लाओ। इन अगर, कौन तुम हो, कौन अलहदा है, तुम ता तुमा तुम, ता वाहिद, तुमा तस्निया, तुम जो है ये जमा है, यानी जमा का सीगे इस्तेमाल फरमा रहे हैं। यहूदियों को फरमाया जा रहा है और फिर ईसाइयों को फरमाया जा रहा है। सादिकीन लफ्ज़ है सादकोन, सादकोन से ये बना है सादिकीन, या और नून सादिकीन की जो है जमा है जरी हालत की, ये जमा कर रही है सादिकीन यानी सच्चे, अगर तुम सच्चे हो। अज़न मोहतरम, वो लोग यहूदी और ईसाई, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जन्नत में जाएंगे, ईसाइयों ने, यहूदियों ने कहा हम जन्नत में जाएंगे, ईसाइयों ने कहा हम जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो, बुरहान, कोई बुरहान पेश करो, दलील पेश करो, कुम बुरहानकुम, अगर तुम सच्चे हो इन कुंतुम सादिकीन। तो वो अपने माल की ख्वाहिशात में, अपने माल जायदाद की ख्वाहिशात में अपनी ज़िंदगी उन्होंने तबाह कर दी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर दी। ख्वाहिशात से, ख्वाहिशात की गुबार ने तेरी अक्ल की आँख दी, ख्वाहिशात की जहरीली हवा ने तेरी खेती जला दी। ये हज़रत जो है मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के भी अशार हैं, उनका मैं तर्जमा कर रहा हूँ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तरह कहा। तो उनको जो है उनका तकब्बुर, उनकी माल जायदाद ख्वाहिशात ने उनको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा हम जन्नत में जाएंगे, यहूदियों ने कहा, ईसाइयों ने कहा हम जन्नत में जाएंगे। उसके बाद गफलत का सुरमा आँख से साफ कर, ऐ इंसान गफलत का सुरमा आँख से साफ कर, करीब है तू खुद खाक की आँख का सुरमा बनने वाला है, मरने वाला है, कब्र में जाने वाला है। इसलिए कि यहूदी भी कब्र में जाते हैं और ईसाई भी अहल किताब हैं, वो भी कब्र खोदते हैं, कब्र में जाते हैं। लेकिन हिंदू लोग जला देते हैं माशाल्लाह। पहले तो वो लकड़ियाँ जमा करके उसको, मुर्दे को उसमें रख देते थे, आग जला देते थे गरीब आदमी। जब वो अमीर आदमी मर जाता, जिस तरह गांधी मरी, संदल में उनको जलाया गया, उनका ये मकसद था कि ये अमीर बादशाह है और इसको संदल से अब भी संदल से जलाते हैं माशाल्लाह। आज जो नया दौर है 1923 की बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने देखा है कि नेट में कि जब वो मरते हैं किसी तरह से तो फिर भट्टियाँ बनी हुई हैं, उसके ऊपर रख देती हैं, एक प्लेट सी होती, फिर उसको आगे जो है धकेल देते हैं, या बटन होता है, बटन के ऊपर बटन को जो है दबाते हैं, फिर वो आगे चला जाता है। जिस तरह केस्ट जो है चली जाती है कंप्यूटर में, यूपी तो फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ये निया दौर है, ये निया उनका साइंसी तरीका है। आगे आग होती है, उसमें वो जल जाते हैं, राख हो जाती है, फिर वो बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद वो ठंडी जो राख होती है बाज को फिर गंगा में बहा देती है। गंगा में बह जाएं या वहीं जलकर राख हो जाएं। मेरे दोस्तों, अगर हिंदू है, बदमज़हब है, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है, उस राख को ज़िंदा करके अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब देगा, उनको जहन्नम में डालेगा। इस दुनिया में भी उनको अजाब है, आग में जलाए जाते अजाब है उनको, और आगे भी अजाब होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कालिमा पढ़ लें, कलमा रसूल करीम का पढ़ लें, कुरान पर अमल करें, इस्लाम को कबूल करें और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को कबूल करें। मेरे दोस्तों, मैं अल्लामा तालिब हुसैन करमानी, बंदा गुनहगार, अल्लाह ताला के हजूर में आज से अर्ज़ करता है कि इस तफसीर करमानी में खुलासा नसीब फरमाए अपने फजल से,
قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے دوستو کہ آپ نے میری مدد کرنی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو ہے میں یہ کام کر رہا ہوں صدقہ جاریہ ہے، میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ دنیا سنے گی اللہ کا کلام، اس کا ترجمہ، اس کا تلفظ، تفسیر، حدیث اور نصیحت جو میں کرتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچے گی۔ میرا یہی عزیزان محترم آگے کا سرمایہ ہے، تو آپ نے میرے ساتھ مدد کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی آگے کا سرمایہ بنایا گیا اس دنیا میں بھی۔ عزیزان محترم قرآن مجید، اسلام اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا بھی مدد کرتا ہے، آگے بھی مدد کرے گا۔ اور میں آپ سے آخر میں یہی کہتا ہوں کہ میں روزانہ ویڈیو بناتا ہوں، اسلام کے متعلق 3 میرے چینل ہیں، آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔